عمران خان کی 3.5 سالہ مختصر دور حکومت کی کامیابیوں کی فہرست میں معاشی ترقی سر فہرست ہے۔ عمران خان نے نہ صرف ورثے میں ملے معاشی گرداب سے ملک کو نکالا بلکہ معیشت کی سمت بھی درست کی، جسے بعد ازاں سازش کے ذریعے مسلط کی گئی پی ڈی ایم حکومت نے ملیہ میٹ کر دیا۔ نگران حکومت پی ڈی ایم پلس بھی اسی مسلط شدہ گروہ کی توسیع ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں تینوں حکومتوں کے چیدہ معاشی اشاریوں کا۔ جی ڈی پی گروتھ میں کمی۔ تحریک انصاف کے آخری سال میں مجموعی ملکی پیداوار 6% ریکارڈ کی گئی، جبکہ پی ڈی ایم نے اس مثبت اضافے کو 0 پر لانے کے بعد منفی سطح تک گرا دیا۔ برآمدات میں مسلسل کمی۔ تحریک انصاف کے دور میں برآمدات کے حجم میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا، جبکہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں برآمدات میں 15% کمی واقع ہوئی۔ ترسیلات زر میں مسلسل کمی۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سمیت دیگر مثبت پالیسیوں کے باعث تحریک انصاف کے دور میں ترسیلات زر تاریخ کی بلند ترین سطح پر رہیں، جبکہ غیر مینڈیٹ یافتہ پی ڈی ایم کے دور میں اس اضافے میں 14% کی کمی واقع ہوئی۔ روپے کی قدر میں تاریخی کمی۔ تحریک انصاف کے 3.5 سالہ دور حکومت میں روپے کی قدر میں 60 روپے کی کمی ہوئی، جبکہ پی ڈی ایم نے محض 16 ماہ میں روپے کی قدر میں 100 روپے سے زائد کی کمی کی۔ بیرونی قرضوں میں اضافہ۔ سیاسی رشوت کے طور پر ٹیکس چھوٹ کے باعث کم سے کم وقت میں عوام پر زیادہ سے زیادہ قرضوں کا بوجھ لادنے کا صحرا بھی پی ڈی ایم کے سر ہے۔ زرعی ترقی میں مسلسل کمی۔ دیگر شعبوں کی طرح پی ڈی ایم نے زراعت کے شعبے کو بھی نظر انداز کیا۔ مینوفیکچرنگ گروتھ میں مسلسل کمی۔ تحریک انصاف کے آخری 2 سالوں میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں 11% کا اضافہ ہوا، جو پی ڈی ایم کے دور میں گھٹ کر منفی رہ گئی۔ مہنگائی بلند ترین سطح پر۔ پی ڈی ایم کی حکومت میں مہنگائی نے پاکستان کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔ بے روزگاری میں اضافہ۔ عمران خان کی حکومت سے برطرفی کے بعد بہتر مستقبل کا متلاشی نوجوان طبقہ مایوس ہو کر بیرون ملک جا رہا ہے۔ آج برین ڈرین عروج پر ہے۔ فی کس آمدنی میں کمی۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہولناک اضافہ۔ ماضی کی حکومتوں کی عدم توجہی کے باعث علاج معالجے کی سہولت پر صرف اشرافیہ کا حق رہ گیا تھا۔ جب غریب خاندان کا کوئی فرد کسی موذی مرض میں مبتلا ہو جائے تو علاج کے اخراجات کے باعث گھر پہ فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ ایسے میں وزیر اعظم عمران خان نے ہیلتھ کارڈ کی فراہمی سے امیر اور غریب کا طبقاتی فرق مٹا دیا۔ اس کارڈ کے ذریعے عام شہریوں کو ملک کے بڑے سے بڑے نجی ہسپتال میں 10 لاکھ تک کا مفت علاج کرانے کی سہولت فراہم کی گئی، جو ترقی یافتہ ممالک بھی اپنے عوام کو دینے سے قاصر ہیں۔ میں بہت غریب سا، اتنی پہنچ نہیں سی میری، علاج بڑا آسان ہو گیا ہے۔ لکھ باری شکر ادا کرنے وزیر اعظم دے جنہیں سانو مفت علاج دی سہولت دیتی ہے۔ میں ہڑپا سٹی سے آئی ہوں، ہارٹ کی مریض ہوں، مفت علاج ہوا میرا۔ غریب اور امیر کے لیے یکساں تعلیمی نظام کا نفاذ عمران خان کا طبقاتی تقسیم کے خلاف ایک شاندار اقدام تھا، جس سے انگلش میڈیم، اردو میڈیم اور مدرسے کے طالب علموں کے لیے مستقبل میں ایک جیسے روزگار کے مواقع کی راہیں ہموار ہونا تھی۔ یہ کتنی بڑی ایک ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایک چھوٹے سے طبقے کو آپ انگلش میڈیم پڑھا دیں اور نوکریاں ان کو دلوا دیں، باقی جو آپ کی عوام ہے وہ بیچاری اوپر ہی نہیں آ سکتی۔ ایجوکیشن اپارٹھائڈ، کیا آپ ایک طبقے کے لیے ایک تعلیم، دوسروں کے لیے نیچے، اور پھر ایک دینی مدرسے چل رہے ہیں۔ کبھی کسی نے کوشش نہیں کی اس کو سنتھسائز کرنے کے لیے کہ ایک ملک ہے، ایک قوم ہے، اس کا کور سلیبس تو ایک ہو۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اب یہ بڑا مشکل اٹیمپٹ کیا چینج کرنے کا یہ سسٹم،
कि हमने एक कोर्स सिलेबस एक बनाया। गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है कि ओवरऑल सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन खत्म हो, क्योंकि एजुकेशन ही बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी नेशन का। जब बच्चा नीचे से आता है वो लोग इकट्ठे बैठेंगे, डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी के, एलीट होगा, मिडिल क्लास होगा, लोअर मिडिल क्लास हो, इकट्ठा बैठेंगे, हार्मोनाइजेशन होगी उनके अंदर। जब हार्मोनाइजेशन होगी तो कल्चर भी उनके आपस में कोहेजन होगी। जब कल्चर कोहेजन होगी तो बच्चा सीखेगा, वो लर्न करेगा, आपस में पोलराइजेशन पॉलिटिकल भी खत्म हो जाएगी, कल्चरल भी खत्म हो जाएगी, लिंग्विस्टिक भी खत्म हो जाएगी। हमने फैसला किया है कि 8, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। क्यों कुरान में अल्लाह हमें हुक्म देता है कि उनकी जिंदगी से सीखो? अल्लाह को तो आप कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, वो हमारी बेहतरी के लिए है। हमारे जब बच्चे बिल गेट्स की किताब पढ़ते हैं या स्टीव जॉब्स की किताब पढ़ते हैं, इसलिए कि वो कामयाब इंसान थे, तो उनकी जिंदगी से सीखते हैं। तो इनसे बड़ा तो कामयाब इंसान था ही कभी नहीं। एहसास वज़ाइफ प्रोग्राम का इजरा हो गया है। प्रोग्राम के तहत गरीब घरानों को होनहार तलबा को 24 अरब रुपए के वज़ाइफ दिए जाएंगे। 1,70,000 स्कॉलरशिप्स हम दे रहे हैं स्किल एजुकेशन के लिए। इसमें से 50,000 ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो हाई एंड स्किल है, मसलन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा है। ये वो चीज़ें आ रही हैं जो कि आप ये समझ लें कि 6-6 महीने के कोर्सेज के बाद आपको वो नौकरियां मिलेंगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल थे, उनको एलिमेंट्री दोपहर को बना दिया। जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो हमारी बच्चियों के लिए, क्योंकि बच्चियों के लिए एलिमेंट्री स्कूल दूर था। वो 5वीं के बाद स्कूल जाना बंद कर देती थी क्योंकि एक्सेस का इशू था। अब इस तरह है कि वो सुबह में काम करती हैं और शाम में आके पढ़ती हैं। ऐसे बच्चे थे हमारे पास जो समझते थे कि अब हम कभी नहीं पढ़ सकेंगे, यानी हमने 5 क्लास ही करनी है। हमारे पेरेंट्स के पास तो कोई ऐसे वसाइल नहीं है। पहले मैं प्राइवेट के स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ की तालीम मुझे अच्छी नहीं लगी और मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे एडमिशन लिया। ये घर के करीब ना होता तो शायद मुझे घर में बैठना पड़ता। मौजूदा स्कूल्स के वसाइल और इंतजामी ढांचे को बरूए कार लाते हुए पहले मरहले में 7,008 प्राइमरी स्कूलों को एलिमेंट्री की सतह पर अपग्रेड किया, जिसके जरिए बच्चों तक मयारी तालीम की फराहमी के साथ साथ 250 अरब रुपए से जायद की बचत मुमकिन हुई। पहले मरहले में अपग्रेड किए जाने वाले 7,008 स्कूलों में करीबन 2 लाख बच्चे ज़ेर तालीम हैं। टेली स्कूल चैनल पहली से 12वीं क्लास तक के बच्चों को तालीमी मुआवनत फराहम करेगा और लॉकडाउन के बायस बच्चों को घर बैठे तालीम की सहूलत फराहम की जाएगी। चैनल पर ऑनलाइन क्लास ना लेने की सूरत में यूट्यूब चैनल से भी मुआवनत हासिल की जा सकेगी। तालीम घर मोबाइल ऐप के जरिए तदरीसी वीडियोस फराहम कर दी गई हैं। ख़ास तौर पे हमारे रिमोट इलाके हैं, वहाँ कई दफ़ा अभी तक प्राइमरी एजुकेशन नहीं पहुँची, तो उनके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। वहाँ टीवी पहुँच गया। मेरे ख्याल में ये है रास्ता आगे बढ़ने का। जब तक कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होता तो हम इसको इस्तेमाल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना उसकी सरबराही संभाली तो मुसलमान गरीब तरीन थे। ज्यादातर तो लोग हिजरत करके आए थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तब फैसला किया कि हम इसको एक फलाई रियासत बनाएंगे। उन्होंने ये फैसला किया कि रियासत जिम्मेदारी लेगी अपने कमजोर लोगों की। आपको तब फलाई रियासत बनानी चाहिए जब आपके पास पैसे हों, लेकिन मदीना की रियासत में तो पैसे नहीं थे। तो अल्लाह हमें क्या बता रहा है कि पहले आप एक रियासत में इंसानियत लेके आते हैं, फिर उस रियासत के पास पैसा आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित किया कि पहले एक इंसानियत का निजाम आता है, फिर अल्लाह खुशहाली लेके आता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार रियासत ने कमजोर तबके की जिम्मेदारी ली। मदीना की तर्ज पर फलाही रियासत बनाने के वजीर आजम पाकिस्तान के मिशन की तकमील के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत मुल्क में जगह जगह पनाहगाहें कायम की गईं।
जहां गरीब मेहनत कशों को छत की फराहमी समेत 2 वक्त का खाना मुफ्त फराहम किया जाता। कमज़ोर तबके को फाकों से बचाने के लिए जगह जगह लंगर खाने कायम किए गए। इस सिलसिले की एक कड़ी कोई भूखा ना सोए जैसा शानदार मंसूबा था। कफालत प्रोग्राम के तहत गरीब और नादार अफराद को माली मदद फराहम की गई। कमज़ोर तबके को राशन कार्ड जारी किए गए जिससे उन्हें अशियाए ज़रूरिया रियायती कीमत पर दस्तयाब थी। वर्ल्ड बैंक ने एहसास प्रोग्राम को समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर दुनिया के 4 बेहतरीन प्रोग्राम्स की फहरिस्त में शामिल किया है। पाकिस्तान को हम वो रियासत बनाएं जो इसको बनना चाहिए था, एक फलाही रियासत, एक रियासत जो जिम्मेदारी ले अपने उस तबके की जिसको दुनिया पीछे छोड़ गई है। कोई भी दुनिया में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जिधर थोड़े से लोग अमीर हो और बाकी गरीबों का समुंदर हो। कोई दुनिया में मुल्क आगे नहीं बढ़ा। मुल्क आगे तब बढ़ता है जो मुल्क अपने निचले तबके को ऊपर उठाता है। अपने 3 साला मुख्तसर दौरे हुकूमत में इमरान खान ने खारजा महाज पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। 2019 के आगाज में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और मलेशिया के वजीर आज़म महातीर का दौरा पाकिस्तान हो, या उसी साल वजीर आज़म इमरान खान का दौरा अमेरिका और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में मसला कश्मीर पर अमरीकी सालिसी की पेशकश। If you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीरियों के लिए हर आलमी फोरम पर आवाज़ बुलंद की और नाम नहाद जमहूरियत के दावेदार भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया। Number 1 action must be that India must lift this inhuman curfew, and then the world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला की कोशिशों के दौरान भी अहम मुकाम हासिल रहा। आज पाकिस्तान को दुनिया ये समझती है वो मुल्क जो कि अमन लेके आ रहा है अफगानिस्तान में, जिसने पूरी कोशिश की सबसे पहले कि अमरीकी और तालिबान की बातचीत करवाई और उसके बाद फिर अफगान गवर्नमेंट और तालिबान को बिठाया। वहाँ मुश्किलात हैं लेकिन पाकिस्तान का एक पॉजिटिव रोल दुनिया आज एक्नॉलेज कर रही है। इस दौरान पाकिस्तान को OIC के 2 इजलासों की मेज़बानी का शर्फ भी हासिल हुआ जिसमें तमाम रुकन ममालिक के आला सतही नुमाइंदों ने शिरकत की। इमरान खान ने मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए भी हर आलमी फोरम पर आवाज़ बुलंद की। शदीद दबाव के बावजूद इसराइल को तस्लीम करने से मुसलसल इनकारी रहे कि क्या हम अल्लाह को जवाब देंगे कि हम उन लोगों को जिनके ऊपर हर किस्म की ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिनके सारे हकूक़ लिए गए हैं, जिनको जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्या हम उनको अबैंडन कर सकते हैं? मेरा तो ये ज़मीर कभी भी नहीं मानेगा ये करने को। जो भी कोई मुल्क करे, हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिलता, उनको एक जस्ट सेटलमेंट नहीं होती। पाकिस्तान दोस्ती तमाम ममालिक से रखेगा मगर किसी और की जंग में आलाकार हरगिज़ नहीं बनेगा। यही आज़ाद और खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी थी जिसकी कीमत इमरान खान को अपनी हुकूमत की कुर्बानी की सूरत चुकाना पड़ी। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। मैं दोस्ती सबसे चाहता हूं, गुलामी किसी से नहीं चाहता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए आलमी सतह पर जो इक़दामात उठाए, इसकी नज़ीर मिलना भी नामुमकिन है।
Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. We human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. Do not use freedom of speech to cause us pain by insulting our holy prophet. That's all we want. This assembly should declare an international day, combat Islamophobia, and build a coalition to fight the scourge that splits humanity. इन कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि 2022 में अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने की करारदाद मंजूर करते हुए 15 मार्च इस्लामोफोबिया के तदारुक का आलमी दिन मुकर्रर किया। हर साल जब भी ये दिन मनाया जाएगा, अक़वाम आलम इस ज़िम्न में इमरान खान के किरदार को फरामोश नहीं कर सकेंगे। हमारा इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और हम अभी तक उसको टैप नहीं कर सके। हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इंसेंटिवाइज करना है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करें, उनके लिए आसान हो पाकिस्तान में अपना पैसा लाना। अगर वो बाहर भी निकालना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो वो भी उनके लिए आसान हो। इसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हमें बहुत ज़रूरत है। रेमिटेंसेस उनकी बढ़ गई हैं, लेकिन हम ऐसी चीज़ चाहते हैं कि उनकी अब इन्वेस्टमेंट आए हमारे मुल्क। रोशन डिजिटल अकाउंट ये एक मौका देता है पाकिस्तानियों को पार्टिसिपेट करने का पाकिस्तान की बिजनेसेस में। दुनिया में चाहे हो कहीं भी अब जल्द से जल्द और बआसानी अपना बैंक अकाउंट, फॉरेन करेंसी या पाक रुपीस में ऑनलाइन खुलवा सकते हैं और जब चाहें मुल्क में पैसे लाएं और बिना रोक टोक जब चाहें ले जाएं। मुल्क में प्रॉपर्टी और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर, शॉपिंग और एयर टिकट्स सब कुछ ऑनलाइन वहीं से बैठे बैठे। रोशन डिजिटल अकाउंट ने मजीद 3 संगे मिल हासिल कर लिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सिर्फ 16 माह में 3 लाख से ज्यादा अकाउंट्स खोले गए, डिपॉजिट्स $3 बिलियन से तजावुज कर गए हैं और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में सरमायाकारी $2 बिलियन से अब बढ़ गई है। बिल्कुल, ये शानदार नताइज हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की कौमी धारे में भरपूर शमूलियत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी देरीना ख्वाहिश की तकमील करते हुए उन्हें ऑनलाइन वोटिंग का हक दिलवाया। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सकें, क्योंकि तकरीबन 90 लाख हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। वो इस मुल्क का बहुत बड़ा एहसास है, उनका ज़रूर उनको हमें शामिल करना चाहिए अपनी इलेक्टरल प्रोसेस में, उनकी आवाज़ होनी चाहिए। तो दो तो ये रिफॉर्म्स हैं हमारी कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और दूसरी ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए एक सिस्टम लेके आ रहे हैं कि वो पूरी तरह इलेक्शन में शिरकत कर सकें। हमने जितनी भी तफ्तीश की है, जो सबसे बेहतरीन सिस्टम जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और जो सारी दुनिया में जो टेस्ट जो अच्छी मिसालें हैं उसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की हमारी अब इलेक्शन कमीशन से बात हो रही है और नादरा का डेटा लेके इंशाअल्लाह ये एक सिस्टम लेके आएंगे कि जो अभी तक पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन इलेक्शन करवाने का सिस्टम आएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। जो पाकिस्तानी बाहर रह रहे थे, ओवरसीज रह रहे थे, हमारे लिए बहुत मुश्किल थी कि हम अपनी जाके वोट्स अपना इजहार कर सकें, अपने ओपिनियंस हम बता सकें। तो ये अब जो नया लॉ है जिसमें जो लोग ओवरसीज बैठे हुए वो ऑनलाइन जाके अपनी वोट्स को कास्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए और बहुत तरक्की की बात है पाकिस्तान के लिए और जो ओवरसीज सारे रह रहे हैं। रेमिटेंस करते हैं पाकिस्तान के अंदर, इनका वोटिंग का हक भी इनको मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। वी आर रियली हैप्पी कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है और हम इसको इस्तेमाल करेंगे और काफ़ी टाइम से ये जो है वो हमारी ख्वाहिश थी जो बादअज़ाम मुसल्लत शुदा हुक्मरानों ने इनसे छीन लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया है। पोर्टल के जरिए ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को पावर ऑफ अटॉर्नी की ऑनलाइन तस्दीक की सहूलत हासिल होगी। मुझे ख़ास तौर पर ये भी एहसास है कि जो हमारे स्टूडेंट्स इंशाअल्लाह ज़्यादा देर नहीं आपको सब्र करना पड़ेगा।
دنیا کے 8 ممالک سے 5000 سے زائد پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کے باعث بیرون ممالک محصور پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تیسرے مرحلے میں پاکستانیوں کی واپسی کے لیے 20 خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے ہم یہاں محصور ہو کر رہ گئے اور بہت پریشانی کی حالت میں تھے۔ میں انتہائی مشکور ہوں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آنے والی نسلوں کو گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی تبدیلی کے شدید اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے 10 بلین ٹریز ایسے انقلابی منصوبے کا آغاز کیا۔ 1 ارب درختوں کی شجرکاری کا آغاز خیبر پختونخوا حکومت نے 2014 میں کیا تھا۔ 2018 میں ملکی اقتدار سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اس منصوبے کو وسعت دیتے ہوئے 10 ارب درخت لگانے کا آغاز کیا، جسے عالمی پذیرائی بھی ملی۔ I was absolutely blown away. I invite everybody to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who has pledged to plant 10 billion trees in Pakistan alone. اقوام متحدہ اور ورلڈ اکنامک جیسے اداروں نے پاکستان کے اس منصوبے کو سراہا، اور تقلید میں جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش، سعودی عرب جیسے ممالک نے بھی اس طرح کے منصوبے اپنے ممالک میں شروع کرنے کا اعلان کیا۔ 5 جون 2021 عالمی یوم ماحولیات کی میزبانی کا شرف پاکستان کو حاصل ہوا، جو پاکستان کے ماحول دوست منصوبوں کا عالمی سطح پر اعتراف ہے۔ 8 فروری کو عوام اپنے معاشی قتل کے ذمہ داران کو ووٹ کی طاقت سے بدترین شکست دے گی، اور ایک بار پھر عمران خان کی سربراہی میں پاکستان معاشی ترقی کی منازل طے کرے گا، انشاءاللہ۔